Hey everyone, welcome to the next lecture in the arithmetic series. Today we are going to look at partnerships. You can find all of these lectures in this playlist. Go check out in the notes. ये click करोगे तो it will directly take you to the playlist. Now let's say there are two partners to a company. The first person invests say 15,000 rupees in a particular business, and in the same business the other partner is investing 10,000 rupees. Yeah. Now, who do you think will get more share, higher share or greater value of the share from the profit? जो भी profit आ रहा है, किसको ज़्यादा मिलेगा? Obviously, the one who invests more, right? So, A will get more share of the profit than B. Correct? And किस रेशियो में? जिस रेशियो में उन्होंने पैसा डाला उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट भी स्प्लिट होगा. ये 15,000 या 10,000, so 15,000 is to 10,000 is basically what? 3:2 के रेशियो में. बहुत बढ़िया, सुपर. So profit will be split in the ratio 3:2. Yes. Let's take another scenario. There's A, there's B. Okay. In this scenario, A is investing his money only for 2 years. And then he, takes it out. 2 साल तक वो इन्वेस्ट करता है, फिर वो निकल जाता है उस बिजनेस से. On the other hand, B is investing this money for 3 years. Yes. अब जो इनका जो प्रॉफिट आएगा उसमें से ज्यादा शेयर किसको मिलेगा? A को कि B को? B को, ऑब्वियसली. वाई? क्योंकि B ने ज्यादा टाइम तक अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा, ज्यादा टाइम तक उस पार्टनरशिप पे कंटिन्यू किया अपना बिजनेस. And she should, B should be getting more, higher value, higher part of the profit, right? किस रेशियो में स्प्लिट होगा ये 2 साल तक, ये 3 साल तक, तो यहां पे 2:3 के रेशियो में स्प्लिट होगा, राइट? यस, बहुत बढ़िया. नाउ हियर वी अंडरस्टैंड कि अगर कैपिटल अलग अलग हैं तो कैपिटल पे स्प्लिट होता है, टाइम अलग अलग है तो टाइम के रेशियो में स्प्लिट होता है. So if I were to take a situation जहां पे A है और B है, yes, I'm going to consider both. I'm talking about the capital. So A का जो capital है, that was how much? 15,000 rupees. और B का कितना capital था? 10,000 rupees. Yes. However, जब हम time की बात करें, B had invested for 2 years. A had invested for 2 years, B had invested for 3 years. Yeah. So when such a scenario happens, जहां पे उनका कैपिटल भी अलग अलग है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी अलग अलग है, और जो ड्यूरेशन है या टाइम पीरियड है वो भी अलग अलग है, तो अब बताओ किसको ज्यादा मिलना चाहिए, A को या B को? सिंपल आंसर टू दैट इज we always consider the share. Yes, जो भी उनका प्रॉफिट का जो भी शेयर है, that share is directly proportional not only just to the capital but also to the time. Yes, तो जो शेयर है that will be directly proportional to the capital as well as the time. हाँ, तो यहां पे हम क्या करेंगे? कैपिटल into the time. 15,000 for 2 years is basically 30,000, है ना? अब ये ऐसा नहीं है कि हर साल 15,000 दे रहा है, हर साल 15,000 दे रहा नहीं है. This is basically 30,000 rupees for the whole duration. Yeah, basically 15,000 into 2, which gives us 30,000. Same way यहां पे क्या है? 10,000 into 3 is 30,000. Now ऐसा नहीं है कि इन्होंने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए, इन्होंने 30,000 नहीं है ऐसा. But since share is also directly proportional to the duration or the time period, and it is also directly proportional to the capital, तो जब हम प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं तब इसका रेशियो लेते हैं लाइक दिस. सो 30,000 is to 30,000 is basically what? 1:1. तो ऐसे सिचुएशन में दोनों को इक्वल पार्ट्स मिलेंगे. व्हाई? बिकॉज C into T का जो रेशियो है दोनों का वो सेम है. सो विद दिस थॉट इन माइंड, ऑल वी हैव टू डू इज व्हाट? जो भी सिचुएशन दिया हुआ है, आप कैपिटल अगर दिया है तो कैपिटल यूज करेंगे, अगर टाइम नहीं दिया है एंड इफ दे आर इन्वेस्टिंग इट फॉर द सेम ड्यूरेशन तो वो कैंसल आउट वैसे भी हो रहा है. तो शेयर इज ऑलवेज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C into T। या इसको रख के आपको आगे बढ़ना है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल बोल रहे A and B started a business investing 85,000 and 1.15 lakhs respectively। तो A है, B है, ये 85,000 है, 85,000 है, और यहां पे क्या है 1.15 lakhs। 1.15 lakhs is basically what? 1,15,000। ठीक है, you have to ensure कि अगर ये lakhs में है तो ये या फिर ये भी lakhs में रखो 0.85 lakhs। अगर ये एक्चुअल वैल्यू में है तो इसको भी एक्चुअल वैल्यू में कर लो, है ना। दोनों का जो यूनिट है या दोनों का जो स्केल है वो इक्वल होना चाहिए whenever you're going for the calculation of the share ratio। सेम वे टाइम क्या दे रखा है आप दोनों के केस में? इन व्हाट रेशियो विल द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर 2 years बी डिवाइडेड बिटवीन A and B। यस, ये भी 2 years है, ये भी 2 years है, करेक्ट। 2 साल 2 साल। नाउ विद दिस वी कैन मूव अहेड विद द कैलकुलेशन ऑफ C into T। दैट्स इट। अब क्योंकि इन दोनों का टाइम ड्यूरेशन सेम है वो वैसे भी कैंसल आउट हो ही जाएगा, so you don't even have to consider। the C into T is basically what? 85,000 into 2, यहां पे क्या हो जाएगा 1,15,000 into 2। yes, तो क्या हुआ? क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं, कॉमन टर्म्स है 2 कैंसल्ड आउट, कॉमन टर्म्स है 3 zeros, यहां पर भी 3 zeros कैंसल्ड आउट। our final ratio is 85:115। This is divisible by 5 17 times, this is divisible by 5 23 times। तो our फाइनल रेशियो, इसके नीचे हम नहीं जा सकते है ना, इसके नीचे अब और क्योंकि ये भी प्राइम है ये अलग प्राइम है, we can't solve it further। So this is our ratio 17:23। From the options it might look like this is the answer, sir, 34। yes, because 2 years, so 17 into 2 34, but 23 into 2 is 46, not 56। yeah, so this is a trap that plays around your emotions of rushing with the calculation। ठीक है, अब 4:3 क्यों गलत है? if we were to go by the options, है ना, 4:3 क्यों गलत है? 4:3 is incorrect because A को ज्यादा क्यों मिलेगा, B को ज्यादा मिलेगा because B has invested more। eliminate। 5:15 is basically 1:3, उतना तक जाने की भी जरूरत नहीं है। Is 1,15,000 a multiple of 15? अगर 1,15,000 multiple of 15 है, नहीं है। even then if we say 5:15 that's 1:3, 1:3 का रेशियो हो रहा है क्या? 85 into 3 will be 240, 255। इतना बड़ा नहीं है वैल्यू, दिस इज आउट। the only option left for us is none of the above, which is what? 17:23। डन। अब ऐसे में सिचुएशन ये है कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशियो दिया है, कैलकुलेटर आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, सो यू हैव टू बी कंफर्टेबल एंड क्विक इनफ विद द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। R invests 35,000 for 8 months and S invests 42,000 for 5/6 of a year। Out of the profit of rupees 31,570, what would be R's share? We have R, we have S। इसका कैपिटल कितना है? 35,000। इसका कैपिटल कितना है? 42,000। टाइम देखो, इसका टाइम कितना है? 8 इन टर्म्स ऑफ मंथ्स है, तो अगर ये मंथ्स में लिख रहे हैं हम, इफ दिस इज इन मंथ्स, तो यहां पे टाइम भी मंथ्स में लिखना होगा। सो 5/6 ऑफ अ ईयर, 5/6 ऑफ अ ईयर इज 1 year is 12 months, है ना। तो 5/6 into 12 is basically what? 10 months। yes, so ये क्या हो गया? 10 months। हमेशा याद रखो जब भी ऐसा रेशियो का आप whenever you are solving, दोनों तरफ जो यूनिट्स है या दोनों तरफ जो स्केल है वो मैच होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थी। अब आगे का यू कैन कैंसल आउट हियर इटसेल्फ इफ यू वांट, वहीं पे कैंसिल कर सकते हो, तो मैं यहीं पे कैंसिल कर रहा हूं, कैंसलिंग आउट 3 zeros दिस साइड, 3 zeros दिस साइड। यस,
I'm saying 35 is 5 into 7, 42 is 6 into 7. ये लीस्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया. अब यहां पे क्या है 8 and 10. 8 is 4 2 times. This is 5 2 times. फर्दर अगर आप चाहो तो क्रॉस में भी आप कैंसल आउट कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली आप मल्टीप्लाई करने वाले. तो C इंटू टी इज बेसिकली 5 into 4 और यहां पे क्या है 6 into 5. Yes. So 5 and 5 gets cancelled. Here you have 2 times 3 times. You're basically splitting this in the ratio 2:3. Yes. So 2:3 में 31,570 को हमें स्प्लिट करना है. How will we do it? 31,570 को पहले 5 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे. 31,570 को पहले 3 + 2 5 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे. उसमें से R का शेयर कितना है 2 पार्ट्स. So into yes, so we have 31,570 divided by 5 into 2 gives us 12,628. ये हमारा फाइनल आंसर. यस, R का शेयर पूछा है. R शेयर इज 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स टोटल. ठीक है, इजी, सुपर. तो यहां पे बस ऐसा ही है कि इफ यू वांट, अगर आप चाहो तो उस कैलकुलेशन को लास्ट तक लेके जाके 35,000 इंटू 8 करके आप वैल्यू निकाल लो, 42,000 इंटू 10 करके आप वैल्यू निकाल लो, फिर आप कैंसल आउट करो. ऑल्टरनेटिवली अगर इंस्टेंटली हो रहा है कैंसल कर लो. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. इधर जो है 2 से ज्यादा पार्टनर्स की बात की गई है. ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप. A invest a sum of money at the beginning of the year and B invest double amount after 6 months and C invest thrice the amount after 8 months. At the end of the year they earn a profit of 12,000. What is B share in the profit? बस यहाँ पे दिक्कत क्या है कि A, B और C का कैपिटल हमें दिया हुआ है. क्या A, B और C का कैपिटल हमें दिया है कि कितना रुपीज है नहीं पता. So if we were to go by this कि कोई एक सम ऑफ मनी है, लेट्स से x है, B कितना इन्वेस्ट कर रहा है, डबल कर रहा है 2x. C कितना इन्वेस्ट कर रहा है, एंड C इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट. तो थ्राइस द अमाउंट मतलब क्या 3x. ये हो गया इसका रेशियो ऑफ द कैपिटल. अब यहां पे x x x कैंसल, 1:2:3. या ये x में सिर्फ आपको ये समझाने के लिए रख रहा था. आप बाद में इसको x को कैंसल आउट कर सकते हैं. सो ये हो गया कैपिटल. देखो टाइम का यू हैव टू बी केयरफुल. टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कितने साल तक पैसा इन्वेस्टेड रहा है ना, दैट इज द कैलकुलेशन. नॉट कितने साल बाद में या कितने महीने बाद में उन्होंने इसे इन्वेस्ट किया, नहीं. तो ए जो है वो शुरुआत में ही इन्वेस्ट कर देता है और वो पूरे साल तक उसको रखता है. तो ए का क्या हुआ, पूरा 12 महीने था उसका पैसा. यस. व्हाट अबाउट बी? एंड बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स. मतलब 12 महीनों में से 6 महीने के बाद वो इन्वेस्ट किया, मतलब 6 मंथ्स उसका इन्वेस्टमेंट रहा है. एंड सी इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ्स. मतलब 12 महीनों में 8 मंथ्स बाद उसने इन्वेस्ट किया, मतलब 4 महीनों तक ही उसका इन्वेस्टमेंट रहा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट अ लॉट ऑफ अस डू इज 12 मंथ्स, ये तो समझ जाते कि चलो साल भर मतलब 12 महीने. सो 12 मंथ्स, 6 मंथ्स और यहां पे 8 मंथ्स लगा देते. नहीं, सी का पैसा 8 मंथ्स तक इन्वेस्टेड नहीं था. सी का पैसा जस्ट 4 मंथ्स तक इन्वेस्टेड था. ठीक है. नाउ वी हैव आवर फाइनल रेशियो ऑफ सी इंटू टी. क्या करेंगे इधर, x को तो कैंसिल कर दिया. सो दिस इज गुड. दिस इज 1 इंटू 12 इज 12. 2 into 6 is 12. 3 into 4 is also. बढ़िया. 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4. So 12:12:12 मतलब क्या, 1:1:1 के रेशियो में स्प्लिट हुआ है, इक्वली डिवाइड हुआ है. तो 12,000 इक्वली डिवाइड हुआ है. तो दे आर आस्किंग बी का शेयर कितना था, 1/3 रहेगा, है ना. 1 2 3 पार्ट्स में से एक पार्ट उसका. सो 12,000 को 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया, कितना 4,000.
So 4000 इसका, 4000 इसका और 4000 इसका. Although they're just asking this. So 4000 is our answer. Done है? You have to be careful. अगर आप यहाँ पे 8 ले लेते हो, if you take 8, तब ये क्या हो जाता? This is 12, this is 12, this will become 24. Yes, so this will become 1:1:2. आ रहा है समझ में? So 12,000 will be split as 1:1:2, मतलब 4 पार्ट्स में. The 12,000 by 4 would have been 3,000. 3,000 अगर आता आंसर तो वो ट्रैप हो जाता. ठीक है, none of the above नहीं है आंसर. Please be super careful of that. बढ़िया. Now look at this. Similar scenario, same situation. ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क. Yes, I'll give you a hint on how to solve it. आगे का आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर जो है कमेंट में डालेंगे. ठीक है, you will answer in the comment section. ठीक है, जिसका भी आंसर पहले आया, सही आंसर पहले आया, we will pin that comment. Okay, चलो I'll give you a quick hint on how to do it. A, B, C 3 लोग हैं. अगेन क्या है? By investing 6, 4 and 10 respectively. तो इसने 6,000 इन्वेस्ट किया है, मैं 6K लिख रहा हूं. 4,000 इन्वेस्ट किया है एंड 10,000 इन्वेस्ट किया है. However, B quits after 6 months. 6 महीने तक उसका पैसा इन्वेस्टेड रहा, उसके बाद क्विट कर दिया. If at the end of the year B receives a share of the profits as 2,500, then what is the total profit? Yes. तो क्या है? ये पूरे 12 महीने तक रहा, ये पूरा 12 महीने तक रहा, बट B ने क्या किया? 6 महीने बाद क्विट कर दिया. मतलब उसका पैसा सिर्फ 6 महीने ही इन्वेस्टेड रहा. 12 minus 6 is 6. ठीक है, तो विद दिस यू विल गेट योर फाइनल रेशियो. C into T का आपको फाइनल रेशियो आ जाएगा. जो कुछ भी कैंसल आउट करना आप कैंसल आउट कर सकते हैं. यस, फाइनली व्हेन यू हैव द 3 रेशियोज, ये क्या बोल रहे हैं कि B का जो पार्ट है, B का जो रेशियो है, दैट इज 2,500. So have a quick look. This is 6 into 12. This is 4 into 6. This is 10 into 12. सबसे पहले मैं 12 तो कैंसिल कर रहा हूं. 12 इधर भी कैंसिल हो गया, 12 इधर भी कैंसिल हो गया. दिस इज 24, ये 24 है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा. यू हैव 6, 2 and 10. अगेन अगर आप इसे फर्दर 2 से कैंसिल करना चाहते हैं तो दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 5. So 3, 4, 5, 9 पार्ट्स है टोटल 9 पार्ट्स है. ये हमें क्या बोल रहे हैं कि वन पार्ट अगर 2,500 है तो टोटल कितना होगा. B का अगर 2,500 है तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा इज द क्वेश्चन. क्या आप ढूंढ पाओगे अभी? यस, यू नो व्हाट इज वन पार्ट. दे आर आस्किंग 3 + 1 + 5 टोटल कितना प्रॉफिट था. Yeah, so with this we are done. We are super comfortable with partnerships. Partnerships के basis पे जैसे भी questions आते हैं, we know what to do. Capital निकाल लो, same unit same scale में. Time invested निकाल लो, same unit same scale में. उनका product ले लो और उसी का ratio. The ratio of that is what is going to give us the overall profit sharing का ratio. ठीक है? So don't forget to answer this homework question in the comments. Here is where you will find the playlist. I hope this video was helpful and you understood the basics of partnership. All the very best, folks. Cheers.